Once again, I welcome in the course Introduction to Fluid Mechanics, and very good morning to all of you. So yesterday we have discussed about the laminar flow, and firstly I have discussed what is the condition for the laminar flow. So I have discussed dimensionless parameter, that is Reynolds number, and with the help of this Reynolds number we can identify whether our flow is laminar or turbulent. So in pipe flow I have discussed when the Reynolds number value is less than 2000, then the flow is laminar. Similarly, for the other mediums like soil, open channel flow, and boundary layer theory, we have discussed the condition for the laminar and turbulent flow. And after that, I have discussed what is the velocity profile, shear stress, and head loss, and how to compute the discharge average velocity and maximum velocity in the parallel plates and the circular pipe of diameter d. So let us quick recap what we have discussed in the last yesterday class. So firstly I have discussed the non-dimensional parameter, that is called Reynolds number. So that was Reynolds number is the ratio of So Reynolds number is the ratio of inertia force to the viscous force. So Reynolds number can be written as inertia force by viscous force, and the expression is rho Vd divided by mu, or we can also write V into D divided by mu, where rho is the density of the fluid, V is the velocity, and D is the diameter of the pipe, and nu is the kinematic viscosity. So for pipe flow, I have discussed for pipe flow, Reynolds number value is less than 2000 for laminar flow. For laminar condition in the pipe flow, Reynolds number should be less than equal to 2000. And after that, I have discussed the two parallel plates. I have taken two fixed or stationary parallel plates. Let us assume this is our parallel plates, and which is b distance apart. So we have seen the pressure velocity distribution and the shear stress distribution. So this is the velocity distribution, and this is the shear stress distribution, and this is the velocity distribution in fixed parallel plates. And this is the maximum velocity. So this velocity is maximum velocity. Similarly, this is called maximum shear stress, or we can also call wall shear stress. This is the maximum shear stress. And the expression between the expression of the general local velocity, that is u is equal to 1 by 4 mu. Sorry, u is equal to 1 by 2 mu minus del p by del x into py minus y square. And similarly, the maximum velocity is coming, that is equal to when y is equal to b by 2 or at the center of the plate, that is 1 by 8 mu minus del p by del x into b square. And similarly, the average velocity, so average velocity is equal to 2/3 of maximum velocity, that is equal to 1 by 12 mu minus del p by del x into b square. So here we can write if the average velocity is 1 by 12 mu to minus del p by del x into b square, so del p by del x or minus del p by del x can be written as 12 mu into capital U is the average velocity into b square. So here we can write the pressure gradient in the
length L, so we can write delta P is equal to 12 mu into U B square into L divided by delta P can be written as gamma into H. So we can write here delta P can be written as gamma into HL. So H head loss can be written as 12 mu into U. Sorry, here 12 mu divided by B square. It is divided by B square. Here if I write, so delta P can be written as 12 mu into capital U into L divided by B square. So 12 mu U into L divided by gamma into B square. So this is the head loss in the parallel plates, where U is the average velocity. Capital U is the average velocity in the parallel plates. L is the length of the plates, and mu is the dynamic viscosity, and B is the gap between the two fixed parallel plates. Similarly, if the one plate is stationary, one plate is moving, and another plate is stationary. Let us assume the gap between these two is B. This plate is fixed and another plate is moving with the velocity that is V. So we can write velocity equation that is equal to capital V by B into Y plus 1 by 2 mu minus del P by del X into Vy minus Y square. And similarly, shear stress can be written as mu into V by B plus minus del P by del X into B by 2 minus Y. So here I have written, we can also write the shear stress equation. So shear stress can be written, the expression of the general equation of the shear stress. So shear stress is minus del P by del X into B by 2 minus Y. With the help of this, we have drawn the distribution of shear stress and the velocity diagram. So this is all about the parallel plates. Similarly, we have discussed for the circular pipe. So for circular pipes, let us assume this is our circular pipe of diameter D. And this is the center line R. So we can write the velocity distribution and shear stress distribution is same like that. This is the shear stress distribution in the circular pipe, and the expression of the velocity distribution can be write 1 by 4 mu minus del P by del X into R square minus small r square. Similarly, maximum velocity can be written as 1 by 4 mu minus del P by del X into R square, and average velocity that is equal to maximum velocity that divided by 2. So it will be 1 by 8 mu minus del P by del X into R square, and shear stress distribution can be written as minus del P by del X into R by 2. So this is all about the circular pipe in pipe flow. Circular pipe of diameter capital D. So here we can write, if I write the expression of discharge and head loss. So here from this equation, average velocity, so here we can write minus del P by del X is equal to 8 mu into U divided by R square. So here HL can be written as 8 mu into U into L divided by R square, and R square can be written as 8 mu into UL divided by D by 2 whole square. Of course, here gamma is also there. So gamma, so this will be 432 mu into UL divided by gamma into D square. If I write this head loss in terms of discharge, so in discharge we can also write HL is equal to 32 into mu into L into discharge can be written as U is equal to average velocity Q by A. So Q by A can be written as pi by 4 into here I think here it will be 8 mu into U divided by D. So here D square, and here we can write pi by 4 into D square into gamma into D square. So it can be written as 128 mu into L into Q divided by pi into gamma into pi into D4. So here we can write in the circular pipe
head loss is inversely proportional to the diameter d to the power 1 by d to the power 4. Similarly, the discharge can be written as, so discharge in the circular pipe, discharge can also be written as Q. We can write Q is equal to area into average velocity. Average velocity. So Q can also be written as, area can be written as pi by 4 d square, and average velocity is, what is average velocity? So average velocity is 1 by 8 mu minus del p by del x into r square. So we can write 1 by 8 mu, average velocity is 1 by 8 mu minus del p by del x into r square. So here we can write pi by 4 into d square into 1 by 8 mu minus del p by del x into r can be written as d by 2 square. So Q can be written as pi by 4 into pi by 32, and 32 into 4 means 128. So if we can write, it will be pi by 128 mu into d square, so it will be d4 into minus del p by del x. So Q is equal to pi by 128. This is called Poiseuille equation. This is the French scientist, physics French scientist, who has given the expression of the discharge, that is equal to pi by 128 mu d4 into minus del p by del x. Similarly, the very famous scientist who has given the major head loss equation in the pipe flow, that is called Darcy-Weisbach. So Darcy-Weisbach equation. So he has given the expression to compute the friction loss in the pipe. Due to the friction, what is the major loss in the pipe? So he has given the expression, expression of friction loss in the pipe. That is also called major loss in the pipe. So according to Darcy-Weisbach, HF is equal to, head loss is equal to FL V square by 2G into D. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. सारा चीज समझ लेते हैं क्या है इसमें. HF जो है वो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन. F is the friction factor. And L is the length of the pipe. And V is of course the average velocity, and D is the diameter of the pipe. So this can also be written as in terms of coefficient of friction. So this और ये HF by L जो, अगर यहाँ से अगर मैं HF by L लिखूं, HF by L that is equal to FB square by 2GT. इसी HF by L को बोला जाता है hydraulic gradient. This HF by L, entire HF by L is called hydraulic gradient. So if I write this Darcy-Weisbach equation in forms of a coefficient of friction, so Darcy has also derived given the equation between the relation between the friction factor and coefficient of friction. So let F be the friction factor, and F dash be the coefficient of friction. So this F that is equal to 4 times F dash. Put the value of in Darcy-Weisbach equation. So what is the Darcy-Weisbach? That is HF is equal to FL V square by 2G into D. So if I write the value of F that is equal to 4F dash into L V square divided by 2 into G into D. So according to the situation, according to the question, we have to apply whether in the question friction factor is given, Darcy-Weisbach friction factor is given, or coefficient of friction is given. Accordingly, we can change, or directly we can use this formula to compute the head loss due to the friction. That is also called the major head loss.
द कंट्रीब्यूशन ऑफ द लॉस दैट इज बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि मेजर हेड लॉस है, जो कि डार्सी ने दिया था और इससे हम लोग ये निकाला। डिस्चार्ज के टर्म में भी इसको अगर लिखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज वी कैन ऑल्सो राइट, डिस्चार्ज के टर्म में भी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सो डिस्चार्ज के टर्म में भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब हमने देखा है कि पाइप फ्लो में ही इन पाइप फ्लो में हमने क्या देखा है कि हेड लॉस जो आया है वो कितना आया है, देखिए यहाँ पे जो हमने हेड लॉस लिखा है वो कितना है 32 म्यू यूएल बाई गामा डी स्क्वायर। तो इन पाइप फ्लो में हमने देखा है कि हेड लॉस जो है वो कितना है 32 म्यू इंटू यूएल बाई गामा इंटू डी स्क्वायर, और इसको अगर इस हेड लॉस के इक्वल हम कर दे तो क्या हो जाएगा FL V स्क्वायर बाई 2G इंटू डी। अब यहाँ से देखो कि एक रिलेशन आएगा। अब देखो पहले क्या क्या कैंसिल हो रहा है, L से L कैंसिल हो गया, यहाँ पे अगर मैंने V लिया है मतलब यहाँ भी हमने V कर दिया है, दोनों एवरेज वेलोसिटी है। तो यहाँ से देखिए एक रिलेशन आएगा, L से L कैंसिल हो गया, V से V कैंसिल हो गया है, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, तो देखो 32 इंटू 2 64, और यहाँ से गामा को अगर हम लोग रो इंटू जी लिखेंगे, गामा इज इक्वल टू रो इंटू जी, तो देखिए क्या आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करो, देखो एक ऐसा रिलेशन आएगा जिससे हम लोग रिनॉल्ड्स नंबर लिख सकते हैं, रो बी डी बाई म्यू, और एफ और रिनॉल्ड्स नंबर में एक इक्वेशन आएगा। देखो इसको सॉल्व करिए, जो चीज कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो पहले, और देखो क्या आ रहा है। सर 64 बाई आर ई, हाँ 64 बाई आर ई आएगा, ठीक है। तो वहां से है कि लैमिनार फ्लो के लिए फ्रिक्शन फैक्टर और रिनॉल्ड्स नंबर में एक इक्वेशन हमारे पास आ गया है, क्या आ गया है, दैट इज 64 बाई आर ई। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, एक मिनट, हाँ यहाँ पे अगर देखें तो मैंने बोला कि पाइप फ्लो में जो हमने हेड लॉस निकाला है वो क्या निकाला था, इन पाइप फ्लो जो हमने लिखा है कि HL इज इक्वल टू FL V स्क्वायर बाई सॉरी HF इज क्या लिखा है हमने पाइप फ्लो में जो इक्वेशन 32 म्यू यूएल डिवाइडेड बाई गामा इंटू डी स्क्वायर। तो यहाँ से जो है अगर मैं लिखूं HL इज इक्वल टू 32 म्यू इंटू V इंटू L डिवाइडेड बाई गामा इंटू डी स्क्वायर, और वही हेड लॉस जो है वो डार्सी साहब ने क्या दिया था, FL V स्क्वायर बाई 2G इंटू डी। तो यहाँ से देखो डी कैंसिल हो गया, तो इसमें बचा क्या, ये देखो यहाँ से L और V कैंसिल हो गया, तो बचा यहाँ पे 32 इंटू म्यू, और V और L तो कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई गामा के जगह पे अगर हम लोग रो इंटू जी लिखता तो G तो कैंसिल हो गया, तो बचा रो इंटू डी, दैट इज इक्वल टू यहाँ से जो है L V कैंसिल हो गया, तो F इंटू V डिवाइडेड बाई G कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू डी, और डी भी तो कैंसिल हो गया है ना। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप देखो जो लिखोगे तो एक रो वी डी बाई म्यू आ जाएगा आपका। यहाँ से अगर आप न्यूज एक नया स्लाइड पे मैं देखा हूँ इसे, तो क्या हो जाएगा, हमारा बचा हुआ है क्या है 32 म्यू डिवाइडेड बाई रो, 32 म्यू डिवाइडेड बाई रो, दैट इज इक्वल टू F इंटू V डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे और क्या बचा है F इंटू V डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी। यहाँ पे कुछ गलत हुआ है क्या, यहाँ पे 32 म्यू यूएल बाई गामा डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे डी स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे एक डी रहेगा, वहां का डी कैंसिल होगा, सो दैट इज रो इंटू डी दैट इज इक्वल टू एफ बी बाई 2। तो यहाँ से आप क्या लिख लोगे, यहाँ से अगर हमने लिखा तो 64 म्यू डिवाइडेड बाई 64 म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका रो वी डी इंटू एफ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपने यहाँ पे अगर कर दिया 64 बाई एफ दैट इज इक्वल टू रो वी डी बाई म्यू, और इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, रिनॉल्ड्स नंबर बोलते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू 64 बाई आर ई। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। लैमिनार फ्लो में जो फ्रिक्शन फैक्टर होगा डार्सी बेस, लेकिन ये रिमेंबर इन माइंड दैट दिस इज एप्लीकेबल फॉर द लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो के लिए हमें ये एप्लीकेबल है। लैमिनार फ्लो के लिए जो होगा डार्सी बेस फ्रिक्शन फैक्टर जो होगा वो रिनॉल्ड्स नंबर से किस तरह रिलेटेड है, तो 64 बाई आर ई, रिनॉल्ड्स नंबर। टर्बुलेंट में होगा तो कुछ अलग होगा, बिकॉज टर्बुलेंट में होगा तो हेड लॉस जो हमने लगाया है 32 म्यू यूएल बाई गामा डी स्क्वायर वो नहीं सेम रहेगा, वो आपका कुछ और आ जाएगा। तो रिनॉल्ड्स नंबर के टर्म में वो हम लोग टर्बुलेंट फ्लो जब पढ़ेंगे तब वहां पे हम देखेंगे।
सो दिस इज ऑल अबाउट, कुछ पार्ट हमने नहीं डिस्कस किया था, जैसे डार्सी-वेस्टरबैक हमने नहीं किया था, एक पॉइज़ी-सेली जो है उस इक्वेशन को हमने बोला था क्या है, तो वो भी कल हमने ये डिराइव किया था लेकिन नाम नहीं बताया था, तो उसको भी हमने बता दिया है। चलो अब इसमें क्वेश्चन करते हैं आज। तो पहला क्वेश्चन ऑफ द टुडे सेशन, और जो पहला क्वेश्चन है कि लैमिनार फ्लो अकर्स बिटवीन एक्सटेंसिव स्टेशनरी प्लेट। लैमिनार फ्लो अकर हो रहा है किसके बीच में? एक स्टेशनरी प्लेट है। Let us assume this is a stationary plate, so the kinetic energy correction factor is nearly. Kinetic energy correction factor क्या होगा? एक स्टेशनरी प्लेट है, स्टेशनरी प्लेट को मान लिया कि एक स्टेशनरी प्लेट है जिसका जो b डिस्टेंस अपार्ट है, और दोनों प्लेट जो है वो फिक्स है। तो यहाँ से हमने देखा था कि इसका एक्सप्रेशन u का एक्सप्रेशन क्या आया था? What is the expression of u? 1/2 mu minus del p by del x, और ये दिस इज द सेंटर लाइन, और ये y वेरी कर रहा था फ्रॉम दी स्टेशनरी प्लेट से। तो यहाँ पे हमने देखा था क्या? by माइनस वाई स्क्वायर, by माइनस वाई स्क्वायर, और यहीं पे हमने मैक्सिमम वेलोसिटी भी निकाला था। मैक्सिमम वेलोसिटी कितना आया था? 1/8 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू बी स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर होता क्या है? काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर का एक्सप्रेशन जो है वो 1/इंटीग्रल ऑफ वी क्यू इंटू डी ए डिवाइडेड बाई ए इंटू बी एवरेज होल क्यू। बताइए, यही तो होता है काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। तो सबसे पहले तो u निकाल लो। तो अगर हमने इक्वेशन 1 और 2 को अगर हमने डिवाइड कर दिया है 1/2, तो क्या हो गया? u by u max क्या हो जाएगा? 1/2 अगर करें, 1 डिवाइडेड बाई 2 करें तो क्या हो जाएगा? u by u max दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो तो डेल पी बाई डेल एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1/2 म्यू और ऊपर 8 म्यू हो जाएगा, तो 4 इंटू बी वाई माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। अरे यहाँ पे अगर मैं करूं तो क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 1/2 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू बी वाई माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे आपका बचा क्या है? माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू बी स्क्वायर, और यहाँ पे 4 म्यू ऊपर चला गया, तो यहाँ से क्या बच गया आपका? सॉरी 8 म्यू ये जो है ये ऊपर चला गया। तो यहाँ से u by u max जो हो गया वो क्या हो गया हमारे पास? दैट म्यू म्यू कैंसिल, डेल पी बाई डेल एक्स कैंसिल, तो यहाँ से कितना हो गया? 4 इंटू बी वाई माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। बोलो, तो यहाँ से आप अब उस इक्वेशन में रख दो, u की जगह पे क्या हो जाएगा? 4u max बी वाई माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। सो अल्फा की वैल्यू कैन बी रिटेन एज, यहाँ से अगर हम लोग लिखे तो 0 to b हो जाएगा आपका 4 टाइम्स u max डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, और यहाँ पे बी वाई माइनस वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई a इंटू वी एवरेज क्यू। अब हम लोग जानते हैं कि पैरेलल प्लेट में जो होता है u max जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो किसके बराबर होता है? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ u max। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे? एवरेज की जगह पे आप रख दो 2/3 ऑफ u max, तो यहाँ से आपका और एरिया क्या हो जाएगा? b इंटू 1, तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू आप 4u max डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इंटू एरिया कितना हो जाएगा? b इंटू 1, तो b, और एवरेज वेलोसिटी की जगह पे अगर रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 8/27। सो 8 2 का क्यूब करोगे तो 8, और ऊपर चला जाएगा 27, और डिवाइडेड बाई u max का क्यूब, यही होगा ना। और यहाँ से अगर आप देखो तो फिर हमारा जो होगा यहाँ पे बी वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करिए, ये इंटीग्रेशन है 0 to b, देखो क्या आ रहा है। और यहाँ पे भी हमने गलत किया है कुछ, यहाँ पे क्या है आपका? अल्फा जो है वो वी क्यू इंटू डी है ना। अरे यहाँ पे क्या है आपका? वी क्यू इंटू डी है ना, तो v आपका v जो है वो कितना है? u max, तो यहाँ पे भी तो गलत हो गया ना, 4u max का क्यूब डिवाइडेड बाई ये भी तो b6 हो जाएगा यहाँ से, तो ये पूरा का पूरा क्यूब है, ये जो है 4u max ये पूरा का पूरा जो है वो क्यूब है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखो कितना आ रहा है? 64 इंटू 4 u max क्यूब डिवाइडेड बाई b6, और इसका फिर क्यूब। तो वहां से इसको आप सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है, अल्फा की वैल्यू निकालिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्यूब था ना, तो क्यूब अगर करोगे वी क्यू इंटू डी है ना, तो वी क्यू तो होगा, तो आपका वी क्यू का एक्सप्रेशन यहाँ पे हमने v, ये तो u है हमारा, v है, स्मॉल v है, तो यहाँ u क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा? 64 बाई u max क्यूब डिवाइडेड बाई b6 इंटू बी वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप रखोगे तो अल्फा की वैल्यू को अगर हम लोग लिखे यहाँ पे तो 64 इंटू u max क्यूब डिवाइडेड बाई b6
और यहाँ पे एरिया है, तो आपका एरिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया को हम लिखते हैं बी इंटू 1, तो बी इंटू बी एवरेज का क्यूब, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 27 इंटू यू मैक्स क्यूब, और इंटीग्रल ऑफ 0 टू बी बी वाई माइनस वाई स्क्वायर का क्यू डी वाई। तो यहाँ से आप देखो क्या आ रहा है, इसका इंटीग्रेशन बताइए कितना आ रहा है। इंटीग्रेशन अगर हम इसका किया जाए तो इंटीग्रेशन देखो कितना आ रहा है आपका, a माइनस बी का होल क्यूब पे तो इसको कैंसिल करो, तो यहाँ से यू मैक्स क्यू कैंसिल हो गया, और यहाँ से आपका b7 है, और यहाँ पे देखो b7 आएगा तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू जो आएगी लगभग अप्रोक्सीमेटली 1.5 आएगा। देखना सॉल्व करके कितना आ रहा है, इस इंटीग्रेशन को देखो कितना आ रहा है, 1.53 करके 543, हाँ 1.543 आएगा अप्रोक्सीमेट। तो दिस वैल्यू इज 1.543। सो हमने अगर ऑप्शन मैच कराया तो क्लोजेस्ट आंसर जो है वो क्या है, डी है 1.5। इसको अगर आप सॉल्व करोगे इंटीग्रेशन तो बस कुछ भी नहीं है, a माइनस बी का होल क्यू करो, सब बात बाकी सारा चीज कैंसिल हो जाएगा आपका। यहाँ पे आपका b7 है तो यहाँ पे भी देखोगे तो b इंटू वाई क्यू, तो वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ये सही है ना, ये वाला वैल्यू, सब लोग का आ गया, सबका आ रहा है 1.543। सबका आ रहा है, देखो जल्दी से निकालिए, फिर आगे बढ़ेंगे फिर। तो यहाँ से 1.543 आया। अब दूसरा क्वेश्चन अगर देखा जाए, दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, सो इन स्टडी लैमिनार फ्लो ए लिक्विड थ्रू ए सर्कुलर पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर d कैरिंग ए कांस्टेंट डिस्चार्ज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। फिर से वही चीज पूछा जा रहा है कि एक सर्कुलर पाइप है, तो सर्कुलर पाइप के केस में हमने देखा है कि u का एक्सप्रेशन क्या था, 1/4 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ से हमने देखा था कि एवरेज वेलोसिटी हमारा कितना आया था, एवरेज वेलोसिटी जो आया था u मैक्स बाई 2, तो कितना हो गया था 1/8 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर। बिकॉज एवरेज वेलोसिटी से ही हम हेड लॉस निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हमने क्या किया, डेल पी बाई डेल एक्स जो है वो क्या हम लिख सकते हैं 8 म्यू इंटू कैपिटल यू आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर x को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका एच एल जो आ जाएगा, हेड लॉस जो आ जाएगा दैट इज गामा इंटू एच, और यहाँ से एल हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 म्यू इंटू यू आर स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाई गामा। अरे यहाँ से 8 म्यू यहाँ पे डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है, सॉरी। सो यहाँ से आपका क्या हो गया 8 म्यू यू इंटू एल, यहाँ पे अगर लिखा जाए तो अगर बस इसको डायमीटर के टर्म में हमको चेंज कर देना है, यहाँ पे भी वही चीज करना है आपको। तो एच एल क्या हो जाएगा आपका 8 म्यू इंटू यू इंटू एल, एक्स के जगह पे हमने पाइप का लेंथ मान लिया कि एल है, एल डिस्टेंस तक है, तो क्या हो जाएगा वो 8 म्यू। तो वहां पे देखो कि कौन सा आंसर सही आएगा। आप आर को डी के टर्म में लिख दो, और बोल रहा है कांस्टेंट डिस्चार्ज, तो वेलोसिटी को डिस्चार्ज के टर्म में आप तोड़िए, v इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी को हम q बाई ए के टर्म में लिख सकते हैं ना, q बाई ए के टर्म में लिखिए, और देखो क्या आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी टू द पावर 4। हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी टू द पावर 4। सब लोग देखो सबका आ रहा है, सबका आ रहा है, सब लोग निकालिए। यहां से अगर बस कुछ भी नहीं करना है आपको, आर को डी के टर्म में आप लिख दो, तो एच एल जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 8 म्यू इंटू यू इंटू एल डिवाइडेड बाई गामा इंटू आर स्क्वायर। अब आर के जगह पे हम लोग डी बाई 2 रख देते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8 म्यू इंटू यू इंटू एल डिवाइडेड बाई गामा इंटू आर के जगह पे हमने रख दिया डी बाई 2 स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो गया 32 आपका जो हो गया एच एल की वैल्यू जो हो गई, एच एल इज इक्वल टू 32 म्यू यू एल
32 म्यू इंटू यू इंटू एल डिवाइडेड बाई गामा इंटू डी स्क्वायर। अब हमें यू के टर्म में नहीं, बिकॉज क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर ए कांस्टेंट डिस्चार्ज, तो हमने क्या रख दिया, यू के जगह पे हमने रख दो यू इज इक्वल टू क्यू बाई ए, और क्यू के जगह पे हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। सो यहाँ से हो जाएगा यू इज इक्वल टू 4 क्यू बाई पाई डी स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच एल इज इक्वल टू 32 इंटू म्यू इंटू एल, यू के जगह पे हमने रख दिया 4 क्यू डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर। सो पाई डी स्क्वायर जो होगा वो क्या हो गया आपका, पाई डी स्क्वायर, तो पाई यहाँ पे हो गया आपका पाई डी स्क्वायर इंटू गामा इंटू डी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग एच एल देखेंगे तो कितना हो गया, 128 म्यू इंटू क्यू इंटू एल डिवाइडेड बाई गामा इंटू पाई इंटू d4। तो एच एल क्या है, एच एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d4। तो वही तो क्वेश्चन में बोल रहा था कि एच एल जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d4। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द वेलोसिटी प्रोफाइल इन द लैमिनार फ्लो इज पैराबोलिक द शियर स्ट्रेस प्रोफाइल मस्ट बी। आपका वेलोसिटी प्रोफाइल जो है वो क्या दिया हुआ है, आपका पैराबोलिक है। मान लो कि हमने लिखा u इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, कुछ इस तरह का वेलोसिटी का प्रोफाइल है। हमने u को लिख दिया है y के टर्म में कि पैराबोलिक हमारा जो है प्रोफाइल है। तो यहाँ पे आपका क्या है, बोला कि व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस हम लोग जानते हैं टॉ इज इक्वल टू म्यू इंटू du by dy। तो सबसे पहले du by dy इसका कितना हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ du by dy। सो du by dy जो हो जाएगा 2ay प्लस b। तो यहाँ से लिख सकते हैं टॉ इज इक्वल टू म्यू इंटू 2ay प्लस b। सो ये किस तरह का रिलेशन हो गया आपका, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से सी ऑप्शन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शियर स्ट्रेस इज स्ट्रेट लाइन। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सिमिलरली अनदर क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन द इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, in a laminar flow between two static parallel plates the velocity at midpoint is found to be 2 मीटर पर सेकेंड। आपका वेलोसिटी जो है लैमिनार फ्लो जो है स्टैटिक पैरेलल प्लेट्स है, आपका जो पैरेलल प्लेट्स है तो मिड पे तो वेलोसिटी होगा वो किस तरह का वेलोसिटी होगा, आपका जो स्टैटिक पैरेलल प्लेट्स है व्हिच इज b डिस्टेंस अपार्ट। सो जो सेंटर पे जो होगा वो कौन सा वेलोसिटी होगा, मैक्सिमम होगा सर, maximum velocity। so this is the maximum velocity। so it means the maximum velocity is given in the question, that is 2 meter per second। so we have to find the discharge और स्पेस जो दिया हुआ है b की वैल्यू जो दी हुई है वो कितना 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगा u एवरेज दैट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ u मैक्स। पैरेलल प्लेट में हम लोग जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो 2/3 ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगा 2/3 ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। So it will be 4/3 मीटर पर सेकेंड। So यहाँ से डिस्चार्ज निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल टू A इंटू एवरेज वेलोसिटी, और एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया आपका पैरेलल प्लेट है तो B इंटू यूनिट लेंथ के लिए तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.1 इंटू 1 इंटू एवरेज वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 4/3। तो यहाँ से क्या आ गया आपका 4/3 दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 0.1 divided by 3। so it is coming 0.133 मीटर पर सेकेंड पर मीटर, बिकॉज पर मीटर के लिए निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 0.133। तो देखिए एक ऑप्शन सी ऑप्शन जो है वो आपका सही है, 0.13 दिया हुआ है। सो क्लोजेस्ट जो है हमारा वही है, क्लोजेस्ट आंसर जो है हमारा वही है, तो हमारा वही सही हो गया। इसमें किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? तो इसी तरह का रहेगा आपका लैमिनार फ्लो दिया रहेगा, पैरेलल प्लेट्स, तो आपको एक्सप्रेशन जो है वो याद रखना होगा। बस इसको इस पूरा लैमिनार फ्लो में किया है कि आपको याद रहना चाहिए सारा चीज। अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और सारा चीज मीनिंगफुल आपने अगर समझा है, सारा चीज अगर समझ लिए हो अच्छे से, तब कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। ठीक है, तो उसको बस आपको याद कर लेना है अच्छे से कि हाँ क्या होगा। एक्सप्रेशन सबको याद है? एक्सप्रेशन सबको याद है? सर एक डाउट था सर, प्रीवियस क्वेश्चन में सर 2/, यस सर, लास्ट में पूछोगे, लास्ट में, ठीक है।
तो यहाँ से जो है जो ऑप्शन जो होगा आपका 0.13 जो है वो करेक्ट है, 0.13। अगला क्वेश्चन जो है फिर से 2002 में, एन ऑयल ऑफ विस्कोसिटी 9 poise इज फ्लोइंग थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ 60 mm डायमीटर। एक ऑयल है जो पाइप के थ्रू जो है फ्लो हो रहा है, जिसकी विस्कोसिटी जो है वो 9 poise है। इफ द फ्लो इज लैमिनार, द प्रेशर ड्रॉप इन 100 मीटर लेंथ ऑफ द पाइप is 1800 kilonewton per meter square. The average velocity of the flow of the oil. क्या होगा आपका एवरेज वेलोसिटी? आपकी विस्कोसिटी जो दी हुई है, डायनामिक विस्कोसिटी, दैट इज 9 poise। 9 poise है तो यहाँ से आपका 0.9 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। फ्लो थ्रू हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ डायमीटर, डायमीटर जो है वो कितना है 60 mm। इफ द फ्लो इज लैमिनार, फ्लो जो है लैमिनार और प्रेशर ड्रॉप दिया हुआ है, डेल्टा पी की वैल्यू दी हुई है कितनी आपका 1800 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और कितने लेंथ के लिए, तो लेंथ ऑफ द पाइप जो है वो 100 मीटर है। तो बोला है कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑयल। तो हमें मालूम है कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, तो हमने पाइप फ्लो में हमें मालूम है कि u इज इक्वल टू 1/4 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो कितना था, एवरेज वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 1/8 म्यू minus del p by del x into r square. Compute the value of average velocity. तो 1/8 into dynamic viscosity is 0.9। आपका प्रेशर ड्रॉप जो दिया हुआ है कितना है 1800 किलो न्यूटन। सो 1800 into 10 to the power 3 डिवाइडेड बाई 100 मीटर लेंथ के लिए, और रेडियस जो डायमीटर दिया हुआ है कितना है, डायमीटर इज 60 mm। सो रेडियस जो हो जाएगा वो 30 mm। तो 30 into 10 to the power -3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो कितना आ रहा है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज 1800 होगा ना, 1800 ही है। तो इट विल बी 1800 into 30 स्क्वायर into 1000 into 10 to the power -6 divided by 100 into 8 into 0.9। So this is 2.25 meter per second, 2.25 meter per second। यहाँ पे देखो 2.25। so A ऑप्शन इज करेक्ट। एवरेज वेलोसिटी हमने डायरेक्ट एक्सप्रेशन से निकाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लो ओवर ए प्लेट इज गिवन बाय u इज इक्वल टू 0.5y माइनस वाई स्क्वायर। आपका एक्सप्रेशन जो है वो जो है वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है, दैट इज 0.5y माइनस वाई स्क्वायर, वेयर u इज द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट ए डिस्टेंस y मीटर अबव द प्लेट। तो आप डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज गिवन, डायनामिक विस्कोसिटी म्यू इज गिवन, दैट इज 0.9 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द शियर स्ट्रेस एट 0.2 मीटर फ्रॉम द बाउंड्री। हमें अब शेयर स्ट्रेस निकालना है 0.2 मीटर। तो हमें डायरेक्ट जो यहाँ पे है, अगर टॉ इज इक्वल टू म्यू du बाई dy, बिकॉज प्रेशर ग्रेडियंट फिर निकालना होगा, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे टॉ इज इक्वल टू म्यू इंटू du बाई dy। तो यहाँ से du बाई dy सबसे पहले निकाल लो। तो u दिया हुआ है आपका कितना 0.5y माइनस वाई स्क्वायर। सो du बाई dy कितना हो जाएगा 0.5 माइनस 2y। सो du बाई dy एट y इज इक्वल टू कितने पे निकालना है, तो y की वैल्यू जो है वो 0.2 मीटर। सो 0.2 मीटर पे कितनी हो जाएगी 0.5 माइनस 2 इंटू 0.2, 0.5 माइनस 2 इंटू 0.2, सो इट विल बी 0.1। तो यहाँ से शेयर स्ट्रेस अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा म्यू इंटू du बाई dy। म्यू जो है आपका 0.9 इंटू 0.1। डायनामिक विस्कोसिटी कितनी है आपका 0.9, तो 0.9 इंटू 0.1, तो इट विल बी 0.09। तो 0.09 जो है आपका 0.09 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द शियर स्ट्रेस। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट। द की ऑफ दिस इंटायर मॉड्यूल इज हाउ, कि आपको एक्सप्रेशन जो है वो याद, और कहाँ से क्या लिया गया है, y कहाँ से है, सेंटर से है, r की वैल्यू रेडियल जो है आपका सेंटर से है, y जो है फ्रॉम द प्लेट से है, ये सारा चीज याद रहना चाहिए, और एक्सप्रेशन डिराइव कर लो आप कहीं पे भी। इन ए लैमिनार फ्लो थ्रू ए सर्कुलर पाइप ऑफ डायमीटर 200 mm, द मैक्सिमम वेलोसिटी इज फाइंड टू बी 1 मीटर पर सेकेंड।
मैक्सिमम वेलोसिटी जो है लैमिनार फ्लो में वो कितना है 1 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी एट ए रेडियल डिस्टेंस ऑफ 50 mm फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द पाइप। आपको एक्सिस ऑफ द पाइप से आपको 50 mm पे चाहिए, तो निकालो। इन ए लैमिनार फ्लो सर्कुलर पाइप का डायमीटर जो दिया हुआ है आपका, डायमीटर इज गिवन दैट इज इक्वल टू 200 mm। मैक्सिमम वेलोसिटी इज गिवन, u max is given that is 1 मीटर पर सेकेंड। सो अब आप यहाँ पे आप एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? तो एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगा आपका दैट इज इक्वल टू, पाइप फ्लो है तो क्या हो जाएगा u max by 2, मतलब कि 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब आपको वेलोसिटी एट ए रेडियल डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, तो आपका एक्सप्रेशन जो अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1/4 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और मैक्सिमम वेलोसिटी का क्या लिखते, 1/4 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ से दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, u बाई यू मैक्स कितना हो जाएगा, u बाई यू मैक्स दैट इज इक्वल टू 1/4 म्यू 1/4 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स कैंसिल, तो क्या बच गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सो वी कैन राइट 1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से रेडियल वेलोसिटी जो आ गया वो कितना हो गया, u मैक्स इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पे निकाल लो, कितने पे निकालना है, मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो कितनी हो गई, मैक्सिमम वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है। सो 1 मीटर इंटू 1 माइनस कितने रेडियल डिस्टेंस पे निकालना है, सो एट ए रेडियल डिस्टेंस ऑफ 50 mm, तो 50 mm पे आपको निकालना है, तो 50 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर जो है वो कितना है 200 mm, तो रेडियस जो होगी वो 100 mm, सो 100 इंटू 10 टू द पावर -3 होल स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू निकाल लो, तो u इज इक्वल टू आपका वैल्यू जो हो गया 1 माइनस 0.75 सर, 50 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 स्क्वायर, 0.75 मीटर पर सेकेंड। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन गेट 2006 का ये क्वेश्चन है। एंड अपवर्ड फ्लो ऑफ ऑयल, ऑयल की जो है डेंसिटी दी हुई है 800 kg पर मीटर क्यूब एंड डायनामिक विस्कोसिटी इज 8 poise, takes place under laminar condition in an inclined pipe of 0.1 meter diameter as shown in the figure. The pressure at section 1 is 1 and 2 are measured, that is P1 is 435 and P2 is 200 kilonewton per meter square. तो वी हैव टू, क्या हमको द डिस्चार्ज इन द पाइप इज इक्वल टू, कितना डिस्चार्ज होगा इस पाइप में वो निकालना है। कि इंक्लाइंड पाइप है, क्या करेंगे, अब सबसे पहले तो बर्नौलीज इक्वेशन लगा दो 1 और 2 पे, अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन एट 1 and 2, और इसको मैंने डेटम मान लिया, लेट अस अज्यूम दिस इज आवर डेटम, ये हमारा डेटम है, दिस इज आवर डेटम। पॉइंट 1 जो हमने डेटम मान लिया है, तो पॉइंट 2 का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 5 sin 45। बोलो, अगर लेंथ ऑफ द ये 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस जो 5 मीटर है, सो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 sin 45। तो यहाँ से अगर बर्नौलीज इक्वेशन लगाया अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन एट 1 and 2 क्या हो जाएगा, P1 बाई गामा प्लस P1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 दैट इज इक्वल टू P2 बाई गामा प्लस B2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2 प्लस हेड लॉस। अब यहाँ पे क्या है आपका जो है कि अपवर्ड फ्लो ऑफ ऑयल जो है और इसकी टेक्स अंडर लैमिनार कंडीशन इंक्लाइंड पाइप ऑफ 0.1 मीटर डायमीटर, जो डायमीटर जो है वो यूनिफॉर्म डायमीटर है शोन इन द फिगर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि डायमीटर जब सेम है तो फॉर द सेम जो फॉर ए गिवन डिस्चार्ज की वैल्यू जो है सबसे पहले तो वहां से आप ये निकालो हेड लॉस कितना होगा। तो पाइप में हमने देखा है कि हेड लॉस कितना होता है, HL इज इक्वल टू 32 इंटू म्यू इंटू UL डिवाइडेड बाई गामा इंटू D स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखो क्या आ रहा है, फॉर ए गिवन डिस्चार्ज होगा तो V1 और V2 तो सेम हो जाएगा ना। अरे जब डायमीटर सेम है तो V1 इज इक्वल टू BQ बाई A1 और V2 इज इक्वल टू BQ बाई सेम एरिया होगा, तो दोनों तो सेम होगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो
तो यहाँ पे आप लगा लो, तो P1 बाई गामा, P1 कितना है, P1 इज गिवन दैट इज 435 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 435 किलो न्यूटन है, तो यहाँ पे 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई गामा, गामा की वैल्यू रो इंटू 1000 इंटू 9.81 प्लस ये कैंसिल हो गया आपका दोनों वैल्यू, और Z1 तो हमने डाटा माना है, तो 0 दैट इज इक्वल टू P2, P2 की वैल्यू जो है वो कितनी है, P2 इज इक्वल टू 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो 200 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 9.81 प्लस Z2 कितना हो जाएगा, 5 sin 45 मतलब 5/√2 प्लस HL के जगह पे हमने रख दिया 32 इंटू म्यू इंटू यू इंटू एल डिवाइडेड बाई गामा इंटू डी स्क्वायर। सारे को इधर लाओ और 32 म्यू यू एल बाई गामा डी स्क्वायर की वैल्यू देखो कितना है। तो ये वाला वैल्यू जो हो जाएगा 435 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 9.81 माइनस 200 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 9.81 माइनस 5/√2, 5 डिवाइडेड बाई √2। तो ये वाली वैल्यू जो आ गई वो 20.42, 32 म्यू यू एल बाई गामा डी स्क्वायर, 32 म्यू इंटू यू एल बाई गामा इंटू डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 20.42। अब 32 इंटू म्यू की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 8 पॉइज, तो आपकी हो गई म्यू की वैल्यू 8 पॉइज मतलब कि 0.8 इंटू यू, आपको यू ही निकालना है, तो पहले हम निकाल लेते हैं यू, या तो यहीं पे आप क्यू में चेंज कर दो, तो हम एवरेज वेलोसिटी पहले निकाल लेते हैं यू। लेंथ ऑफ द पाइप इज 5 मीटर, तो लेंथ ऑफ द पाइप इज 5 मीटर डिवाइडेड बाई गामा, गामा की वैल्यू हो जाएगी 1000, और यहाँ पे एक गलत हम लोगों ने कर दिया है कि रो की वैल्यू जो है वो 800 दिया हुआ है, हमने 1000 रखा है यहाँ पे। क्वेश्चन में रो जो है वो 800 है, इन द क्वेश्चन इट इज गिवन द इट इज नॉट वाटर, ऑयल है। अब क्या है, अपवर्ड ऑयल है, तो उसकी जो डेंसिटी तो 1000 थोड़ी होगी, तो यहाँ भी आपका जो होगा दिस इज 800 इंटू 9.81। तो ये वाली वैल्यू जो है अब चेंज हो जाएगी, ये जो हो गई आपकी 800 ये वैल्यू जो है वो 26.41 आ रहा है। दिस वैल्यू इज 26.41। तो यहाँ पे भी आपका जो होगा डेंसिटी जो रखाएगा वो 800, सो 800 इंटू गामा 9.81 इंटू डायमीटर, डायमीटर जो है वो पाइप का कितना दिया हुआ है 0.1, सो 0.1 का स्क्वायर, 0.1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 26.41। सो यहाँ से आप यू निकाल लो, यू कितनी हो जाएगी, सो दैट इज इक्वल टू 26.41 इंटू 800 इंटू 9.81 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 0.8 इंटू 5। तो वेलोसिटी जो है वो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, 26.41 इंटू 0.1 का स्क्वायर है ना यहाँ पे, दिस वैल्यू इज 26.41 इंटू 800 इंटू 9.81 इंटू 0.1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 32 इंटू 0.8 इंटू 5। सो दिस वैल्यू इज यू जो आ रही है 16.19 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से क्यू जो है आप निकाल लोगे एरिया इंटू वेलोसिटी, सो π/4 इंटू 0.1 स्क्वायर इंटू 16.19। So this value is pi into 0.1 square into 16.19 divided by 4. So this value is coming 0.127 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो डिस्चार्ज की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है 0.127 मीटर क्यूब पर सेकेंड। So B option is correct. So you can see that the so many calculations are there for the sake of 2 marks in the GATE exam. तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि गेट का एग्जाम जो है द क्वेश्चन द लेवल ऑफ द क्वेश्चन इन द गेट एग्जाम इज वेरी वेरी
आप कह सकते हो हाई तो नहीं बोलेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड होता है। लेकिन आपको प्रैक्टिस रहेगा तो ऐसा क्वेश्चन जो है एक ही बार नहीं पूछा रहता है, आपको बहुत बार पूछा रहेगा। सो वंस यू हैव प्रैक्टिस, तो आपके दिमाग में रहेगा कि इस तरह प्रोसीजर आपको करते जाना है, और वहां से निकला। तो अब यहाँ पे पाइप फ्लो का क्वेश्चन ये कैसे हो गया? अगर आप पाइप फ्लो में, अब सॉरी लैमिनार फ्लो में अगर ये हेड लॉस नहीं पढ़े रहोगे 32 म्यूचुअल, अगर यहाँ पे ये जो हेड लॉस है अगर बोल देगा कि फ्रिक्शन हेड लॉस लेना है, आपको फ्रिक्शन हेड लॉस लेना है, तो कौन सा इक्वेशन लगा देते फिर? डार्सी वेस्टबैक इक्वेशन, दैट इज FLV²/2GT। तब इस क्वेश्चन में या तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू दी होती, तो वहां से हम वो हेड लॉस लेते। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द पाइप लैमिनार फ्लो, और इसमें भी पाइप फ्लो का है, तो डायरेक्टली हमने लिखा 32 μL/γ/d², और वहां से हमने क्या निकाल दिया? डिस्चार्ज की वैल्यू निकाल दी है। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? चलो, now I have taken one conventional question from the Indian Forest Services exam 2015, 15 marks। बोला जा रहा है कि एक ऑयल है जिसकी डेंसिटी 900 kg/m³ and dynamic viscosity is 0.01 Newton/s², is being pumped through a 5 cm diameter steel pipe at a rate of 7 × 10⁻⁻⁴ m³/s। एक स्टील पाइप है जिसका डायमीटर जो है, डाया ऑफ द स्टील पाइप दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और इसकी डिस्चार्ज की वैल्यू दे दी है, कितना है? 7 × 10⁻⁴ m³/s। It is required to reduce the head loss to half by replacing the pipe by a larger diameter। अब क्या बोला जा रहा है कि जो पहले जो स्मॉलर डायमीटर था उसमें हेड लॉस जो है वो ज्यादा आता था, हमने क्या कर दिया कि डायमीटर को बढ़ा दिया है। अब पाइप के डायमीटर को बढ़ा दिया है, इस तरह बढ़ाया है ताकि जो हेड लॉस जो आ रहा था वो हाफ हो जाए। तो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द न्यू पाइप? डायमीटर ऑफ द न्यू पाइप जो होगा वो क्या होगा? तो सबसे पहले तो ये क्या है आपका? पाइप फ्लो है। तो पाइप फ्लो में अभी हमने देखा है कि हेड लॉस की वैल्यू कितनी आती है? 32 × μ × u × L डिवाइडेड बाई गामा × d², यही आता है ना। तो यहाँ से आप सारा चीज अगर रखो और जो चीज बचा हुआ है उसको रहने दो। डायमीटर दिया हुआ है, आप इसके टर्म में लिख दो और इसको हाफ करके, और फिर जो है आपका न्यू डायमीटर क्या हो जाएगा, तो वहां से आप निकालो क्या आ रहा है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हेड लॉस निकाल लो इन टर्म्स ऑफ लेंथ। जो ऑयल है इस पंप थ्रू पाइप एट ए रेट ऑफ इतना, इट इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द हाफ। तो आप सबसे पहले तो हेड लॉस निकालिए। यहाँ से हेड लॉस कितना हो जाएगा? 32 × μ की वैल्यू दी हुई है 0.01 × u। तो u के जगह पे आप q के टर्म में भी लिख सकते हो, q/a भी लिख सकते हो यहाँ से। तो क्या लिखोगे? q/a। तो यहाँ से q की वैल्यू दी हुई है 7 × 10⁻⁴ इंटू लेंथ नहीं दी हुई है, तो L डिवाइडेड बाई गामा। गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 900 × 9.81 × d²। तो d² कितना हो जाएगा? 0.05 का स्क्वायर इंटू यहाँ भी एरिया भी बचा हुआ है हमने q/a, तो a कितना हो जाएगा? पाई × 4 × d², सो 0.05 का स्क्वायर। ये वाला वैल्यू देखो L के टर्म में कितना आ रहा है इन टर्म्स ऑफ L, तो इट विल बी 32 × 0.01 × 4 × 7 × 10⁻⁴ divided by 900 × 9.81 into 0.05 to the power 4 into pi। तो ये वाला वैल्यू जो आ रहा है वो 5.168 into 10⁻³ L। अगर देखो सब लोग का यही आ रहा है तो एक बार चेक कर लीजिए इसको, प्लीज क्रॉस वेरीफाई। इसको क्रॉस वेरीफाई करो कितना आ रहा है? 0.01 into 28 into 10⁻⁴ divided by 900 into 9.81 into pi into 0.05 to the power 4, so 5.168 into 10⁻³ into L। अब बोल रहा है कि हमने इसको क्या कर दिया है कि डायमीटर जो है हमने रिप्लेस कर दिया है। डायमीटर जो है वो हमने रिप्लेस कर दिया है, और तो डायमीटर को जब रिप्लेस किया गया तब हेड लॉस क्या आएगा? इसका हाफ हो जाएगा। तो न्यू जो हेड लॉस है, न्यू हेड लॉस दैट इज HL डैश दैट इज इक्वल टू 32 × μ × UL डिवाइडेड बाई गामा × d²। d जो है d² है 5.168 into 10⁻³ L डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 32 × μ। म्यू की वैल्यू जो है वो दी हुई है कितनी? 0.01 into 7 × 10⁻⁴ 7 × 10⁻⁴ into
L into 4 divided by 900 into 9.81 into pi into d dash to the power 4. L कैंसिल हो गया, तो यहाँ से देखो कितना आ रहा है, d dash 4 that is equal to कितना आ गया, तो 32 64 into 0.01 32 into 264 into 0.01 into 7 into 4 into 10 to the power minus 4 divided by 900 into 9.81 0.0 into pi into 5.168 into 10 to the power minus 3, that is to the power 0.25. तो ये वाली वैल्यू जो आ रही 0.09594, देखो ये कितना आ रहा है, यस सर 0.0594. डी डैश जो आ रहा है वो 0.0594 मीटर, तो इसका mm जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 594 mm जो आ जाएगा न्यू डायमीटर जो होगा आपका। ठीक है, तो वहां से हमने इसको भी निकाल लिया। बताइए यहाँ तक कोई डाउट, तो यहाँ तक कोई डाउट है? सो दिस इज ऑल अबाउट दी जो है आपका जो है हमने पूरा का पूरा लैमिनार फ्लो में हम यही दो चीज पढ़ना था। पैरेलल प्लेट को भी डिस्कस कर लिया हमने, और सर्कुलर पाइप में बहुत सारा क्वेश्चन भी किया है, बाद बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको आप लगाओ। तो नेक्स्ट मॉड्यूल जो होगा वो फिर हम लोग पाइप फ्लो स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद पाइप फ्लो में मेजर हेड लॉस और माइनर हेड लॉस को हम लोग पढ़ के फिर उसके बाद हम लोग टर्बुलेंट फ्लो को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।